वंदितु सहोसिते ब्रह्मचर्य मणो सत्य ओछानी समय पाव निर्मोचित तत्व मोक्ष समय साथी 15वीं गाथा और उस 15वीं गाथा का 5वां विशेषण 14वीं गाथा और उसका 5वां विशेषण वो अपनी चर्चा में चल रहा है। बात सरल सी है और बड़ी गजब है। आत्मा को किस दृष्टिकोण से देखना है, बात इतनी सी है। कल हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे बात आई थी कि चौथे नंबर का जो विशेषण है ना, सभी सामान्य और विशेष वाला, तो जैसे स्वर्ण का चिकनापन, पीलापन, भारेपन आदि पड़ी गयो ना 739 पाना ऊपर, आदि गुणरूप भेदों की अनुभव करता विशेषपणु भूतार्थ એટલે આત્મામાં જેમ કે સોનામાં આવા ગુણ નથી એમ નથી, કેમ કે જગતમાં કોઈ પણ સ્વર્ણ આ ગુણો વગર રહી શકતો નથી। ખ્યાલમાં આવે છે? ભૂતાર્થ એટલે આયાત છે, એમાં અધર નથી, બરાબર ને? સત્યાર્થ છે, પણ તો પણ જેમાં સર્વ વિશેષો વિલય થઈ ગયા છે એવા સુવર્ણ સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા એનો પણ ખુલાસો કર્યો કે ભાઈ જેમ બધું છે પણ જ્યારે તમે સ્વર્ણ જો ઘણી વખત આપણે અનુભવીએ છીએ, બરાબર? કે લગન હોય તો પહેલા કહીએ કે ભાઈ કેટલો સોનું આપ્યો, શું હાર બીટી બંગડી એવું કઈ નથી કહેતા, શું કહીએ છીએ? કેટલો સોનું આપ્યો। આપણે કોઈ પ્રોપર્ટી બતાવવાની હોય પોતાની તો શું કહીએ? આટલું સોનું છે। ભાવ વધે તો સોનાના હારના ભાવ વધ્યા कि वीटीना बढ़िया कि बंगड़ीना बढ़िया, किसके भाव बढ़े? सोने के बढ़े। यानी सब जगह जब हम पहनना होता है तब जरूर उसकी अवस्थाओं का विचार करते हैं, लेकिन जब संपत्ति के रूप में उसको देखते हैं तब अवस्था ख्याल में नहीं आती, मात्र सोना ख्याल में आता। ऐसे लिखा है, देखो इसमें, एवी रीते आत्मानो ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों की अनुभव करता विशेषपणु भूतार्थ से, मतलब आत्मा इन गुणों से रहित नहीं है, कोई भी आत्मा इन गुणों से रहित नहीं होता। ये गधे के सींग जैसे गुण नहीं है। आत्मा में ज्ञान है बेटा? है क्या है? शरीर में क्या ज्ञान है? तो मरी जाए तो बाड़ी नाखे ने। मगज में है तो मगज बढ़ी जाए तो बॉडी बढ़ती हो तो मगज ना बढ़े, तो पछी ज्ञान क्या है? बोल बेटा, तू बोल। शरीर में है, शरीर तो मर्दो है, आत्मा में ज्ञान कोण है? शरीर ना अंदर कोण है? आत्मा है। अने आत्मा में शू है? ज्ञान। तने कोई आम चींटी भरे ने तो कोने खबर पड़े? शरीर ने कि आत्मा ने? आत्मा ने। केम? केम के जो शरीर ने खबर पड़ती होय तो कोई मरेला माणस ने गमे तेवी चीटली भरो एने काई थतो केम? केम कि एमांथी शुं जतो रह्यो? आत्मा। એટલે જે હતી ત્યારે એ જ જાણતી હતી। આપણે એમ લાગે આંખ જાણે, કાન જાણે, મગજ જાણે, હાથ પગ જાણે, આ નથી સ્વરૂપ। ખ્યાલમાં આવે છે કે એ નથી જાણતો। એક એક વસ્તુ સમજી લેવાની। જે દેખાય છે
એ જાણતો નથી, જે નથી દેખાતો એ જાણે. શું કીધું? ના 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 ના, હું તો કે છે એ ઠીક છે, એ જણાય છે પણ જાણતો નથી એમ. શું કહું? આ બંને વચ્ચે ફોર્મ્યુલા યાદ કરી લે બધાને. યુનિવર્સલ ફોર્મ્યુલા. જે દેખાય છે એ જાણતો નથી અને જાણે છે તો દેખાતું નથી. બોલો, ટ્રાય કર. અઘરું નથી, તારા માટે જ કહું છું બેટા. નવા વર્ષની બોની આપું ને? હા, નવા વર્ષની બોની જોઈએ કે નહીં જોતી મારાથી? આ મસ્ત બોની કોરી કોરી. હા, પણ એ બહુ મસ્ત. શું કીધું? ફરીથી યાદ કરવાનું આપણે. જે દેખાય છે એ જાણતો નથી, જાણતો નથી. ફરી, જે દેખાય છે જાણતો અને જાણે છે. હવે પાકું? હવે ઘોટાળો નહીં કરશે ને? હા બોલો. વેરી ગુડ. તું વધારે કેમ બોલે છે? બોલે તો સારો, બરાબર. જે દેખાય છે જાણતો નથી અને જાણે છે દેખાય. ઓકે, એ જ રીતે યાદ કરવા. હવે જગતમાં જે કઈ વસ્તુ બધી દેખાય છે ને, આંખ દેખાય છે, હાથ પગ દેખાય છે, ટીવી દેખાય છે, મોબાઈલ દેખાય છે, કેલ્ક્યુલેટર દેખાય છે, છાપુ દેખાય છે, એ બધું જાણે છે કે નથી જાણતા? એ નથી જાણતા. કેમ? કેમ કે જે દેખાય એ જાણતો નથી અને જાણે છે એ દેખાતો નથી. એવો કોણ છે? આપણી આત્મા. એવો કોણ છે? આપણી આત્મા. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે ને? તો હવે અહીં આવીએ આપણે કે જેમ આ બધું જોવા દેખાય છે તો ભૂતાર્થ છે, એટલે આત્મામાં જ્ઞાન છે, જ્ઞાન નથી. એવો જ્ઞાન આદિ ગુણ ગધેડાની સિંગની જેમ નથી, એ છે, ભૂતાર્થ છે. ભૂતાર્થ એટલે હયાત છે, વિદ્યમાન છે. બરાબર. પણ હવે જો શું કહે છે? એવી રીતે સત્યાર્થ તો પણ જ્યાં સર્વ વિશેષો વિલય થઈ ગયા છે. શું થઈ ગયા? સર્વ વિશેષો વિલય થઈ. બરાબર ને? હમણાં કોઈ પણ સરસ વસ્તુ ખાઓ તો ખાધા પછી, જેમ ખીચડી જ ખાધી, બની તમે સરસ કહો ને ખીચડીનું નામ લઈ લો. સમજ્યા? કોઈ પણ વસ્તુ જે તને ગમતી હોય, ભાવતી હોય, જેમાં બધું છે, પણ જ્યારે સ્વાદિષ્ટ થાય ત્યારે બધા વિશેષો શું થઈ જાય છે? વિલયને પ્રાપ્ત થઈ જાય. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? કોઈ પેઇન્ટિંગ હોય ને, પેઇન્ટિંગ બનાવે સરસ મજાનો ચિત્રકાર, ત્યારે જ્યારે બહુ સરસ પેઇન્ટિંગ છે કે નહીં? હવે મને એટલું બતાવો, જણાવો બેટા, કે બહુ સરસની શું ડેફિનેશન આવે એમાં? કેમ બહુ સરસ છે પેઇન્ટિંગ? એટલે કઈ હશે ને એના અંદરમાં. શું હશે? એનું કલર સિલેક્શન સારું હશે, એની લાઇનિંગ સારી હશે, એની શેડિંગ સારી હશે, એની જે કંઈ પણ વટેવર થાય, એની થીમ સારી હશે, એનો વિઝન સારો હશે, બધું એ જ હશે ને? બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? આપણે તો બહુ પેઇન્ટર નથી. આપણે નાનપણમાં એક જ પેઇન્ટિંગ બનાવી હતી, ખબર છે? આ સમજી ગયા? 2 પહાડ, એના વચ્ચે સૂર્ય ઉગાડવાનું ઉપર. એવી પેઇન્ટિંગ છે જે દરેકને બનાવી હશે. બનાવી છે ને બધા. એ કોઈ બીજી કોઈ पेंटिंग बनावे कि ना बनावे, पर डब्लू वाली पेंटिंग, एम वाली पेंटिंग सब बना लेंगे. 2 पहाड़, उसके बीच में सूरज, उसके आजू बाजू नदी, पक्षी चहचहा रहे और खजूर के पेड़, सबसे आसान.
तो कोई पेंटर की ने जब चित्र बनाया और हमने बोला कि चित्र बहुत अच्छा है, तो अच्छे के कारण क्या? उसकी लाइन, उसकी शेड, उसका कलर, उसकी थीम, उसका विजन, सब अच्छा। लेकिन जब हमने बोला कि ये सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो गए, इन सबके कारण वो पेंटिंग कैसी है? मनमोहक है, सुंदर है, आकर्षक है। लेकिन हमें वो लाइन नहीं दिख रही, हमें कलर नहीं दिख रहा, हमें शेड नहीं दिख रहा, हमें क्या दिख रहा है? कंप्लीट चित्र दिख रहा है। और गजब ये है कि उनमें से जब तक कोई चीज बिगड़ती नहीं है तब तक उस विशेष पर दृष्टि जाती नहीं। अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर वस्तु पर लोग फोकस करें तो आप उसको थोड़ा बिगाड़ दो। समझे कि नहीं समझे? अगर फोकस का वो होता है ना, जैसे बच्चे होते बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर वो सब बातें कर रहे हो अपने अपने, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो ना, तो क्या करेगा? वो रोना चालू कर दे, कारण बिना। क्यों? કોઈ મારી तरफ જોતો જ નથી। એટલે સામાન્યમાં जब બધું સરખું ચાલે તો કોઈ એના ઉપર ધ્યાન ના આવે, તો પછી શું કરે? રડવાનો શરૂ કરે। ये છે वस्तु कि अगर आपको जब सामान्य अनुभव में आ रहा है, मतलब वो सारी चीजें अपनी बेस्ट अवस्था में हैं, ये कहना चाह रहा हूं। कुछ भी नहीं होता और कुछ दिखेगा गुण, तो मतलब पेंटिंग बिगाड़ दी आपने। वो लाइन सीधी सीधी पर्टिकुलर जा रही हो तो आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, सीधी जाने की वजह टेढ़ी जाएगी ना, तो दृष्टि जाएगी। ये बड़ा सीधा सा नहीं। देखो ना, आप तो रोड पर क्या है, कहीं निर्देश होता है सीधे रोड पर, जहां पर वळांक होता है वहीं पे निर्देश होता है। जहां सीधा सीधा जा रहा होता कोई निर्देश नहीं होता था, वहां रोड सामान्य का प्रतिभास होता। ऐसे ही है अनुभव का मर्म ही है कि सारी चीजें होते हुए भी जब वो एकदम सिस्टमेटिक अपने स्वभाव में होती हैं तब एक भी चीज दिखाई नहीं देती, और जब बिगड़ती हैं तब ख्याल में आता। और ऐसा एक जगह नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। मोबाइल में 50 एप्लीकेशन है, अपना अपना काम करती रहे, आपको एक मोबाइल दिखाई देगा। और जब कोई बिगड़ती है तो कहते हैं ये स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी फ्लैश नहीं चल रहा, इसकी क्या कहते हैं व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, हैंग हो गया। कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम होते हैं, कोई आपको ख्याल नहीं। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की प्रति सब अपना अपना काम कर रहा है। विचार कर, सबसे बड़ा शरीर मैकेनिक 25, 30, 40, 50 वर्ष तक पता ही नहीं चलता, जब व्यवस्थित जीवन जीते थे। आजकल तो बहुत हाइपरटेंशन वाला जीते हैं ना, तो 20-25 में ही खबर पड़ जाती है। नहीं तो जो सच बता रहा हूँ, मेरे जो एक पीढ़ी पहले वाले लोगों से बात करते थे कि 40-45 तो कहाँ हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। वो सब अपना आहार निहार, आराम, श्रम सब एकदम सिस्टमेटिक चलता था। कुल मिला के तब तक वो लोग शरीर का ध्यान ही नहीं देते थे। और ध्यान नहीं देते थे इसका मतलब बिगड़ा हुआ था, ऐसा नहीं था। वो ध्यान इसलिए नहीं देते थे कि बिगड़ा नहीं था। आप समझे इस बात को? समझे कि नहीं समझे? और अब क्या हो गया, इतना बिगाड़ दिया है, ना नियमितता है, ना खान पान की शुद्धता है, चिंता इतनी है। तो 20-25 साल से वो कहना चालू हो जाते हैं, भाई अब क्या करो, चेकअप कराना चालू करो, चेकअप कराना। मतलब अब अभी सामान्य शरीर की प्रतीति मत करो, अब क्या करो, विशेष शरीर। विशेष शरीर मतलब हार्ट कैसा चल रहा है कि नहीं। एक बार वो मुझे आया था, क्या कहते हैं, अभी भी आता होगा सबके पास, वो 699 रुपए में 69 प्रकार की जांच कराओ। इतनी बार मैसेज आता है उसका, क्या पता। मतलब 69 विशेष प्रकार से क्या करो, शरीर को जानो। 69 चेक कराने का मतलब क्या है, वो क्या क्या नाम देते हैं उनको, लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, लिक्विड नहीं सॉरी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, उसमें 69 और कितनी 70 और शायद जांचें होंगी। ये जांच क्या है, ये जांच क्या है? एक शरीर की अनुभूति मत करो आप, कैसी विशेष रूप अनुभूति करो। हार्ट की अलग,
किडनी की अलग, बराबर है, लीवर की अलग, और इसकी अलग और उसकी अलग। अब मैं उसमें विचारता हूं कि जब सामान्य सब व्यवस्थित चल रहा है तो विशेष ज्ञान का क्या करना? बिगड़ता है तब विशेष की दृष्टि होती है। जब सब अपने अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं तब सारे विशेष विलय को प्राप्त हो जाते हैं, एक शरीर दिखता है। ये सब जगह हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर विशेष जान जानकर बना जाता है और आनंदित विशेषों को भूलकर हुआ जाता है। ये दोनों में अंतर है, समझे? अगर आपको डॉक्टर बनना हो, किसी भी चीज का डॉक्टर बनना हो, तो आपको क्या करना, मतलब मलम के डॉक्टर नहीं कह रहे, कलम के भी डॉक्टर बनना हो, मास्टर बनना हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? विशेष 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 विशेष। लेकिन आनंद में रहना हो तो सारे विशेष भूल जाओ। बराबर जानना है कि नहीं? ये जीवन का है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है कि जब यहाँ कहते देखो कि सामर्थ्यार्थ तोपण जेमा सर्व विशेषो विलय થઈ ગયા છે એવા આત્મ સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા, તેના સમીપ જઈને આત્મ સ્વભાવ के સમીપ जाके અનુભવ करता વિશેષપણું અભૂતાર્થ એટલે નીકળી ગયો છે એમ નથી। આ જો એ કેટલી જગ્યામાં કીધું, હવે શરીરમાંથી બધા હાડ કિડની નીકળી ગયા છે એમ નથી, બધા જ છે, એની એ જ જગ્યા છે, પણ દ્રષ્ટિમાં આવતા નથી। બરાબર છે ને? અને દ્રષ્ટિમાં આવું સારું કે દ્રષ્ટિમાં ના આવું સારું, મને એમ કહો। लौकिक में अपन कहते ना सही डॉक्टर क्या होगा, कोई डॉक्टर मिले ना, डॉक्टर मित्र होता है, तो मैं बार बार कहता हूँ ऐसे तो तुम्हारे पास नहीं आना पड़े, वो आओ तो दिवाली पे मिलने आ जाओ, नए वर्ष पे मिलने आ जाओ, वो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आना पड़े वो ही अच्छा है। बोले हम भी यही इच्छा रखते हैं कोई नहीं आए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ऐसे ही शरीर इतना व्यवस्थित रहे तो नहीं दृष्टि में आता। सबसे अच्छा रहता है अपनी युवावस्था में, तब अंदर की कोई अंग की जांच और तपास की इच्छा है, जागृति है, जिज्ञासा कुछ होती नहीं है। क्या नहीं समझे? ऐसा ही बराबर। तो जब आत्मा की अनुभूति होती है तो सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो जाते हैं और वही श्रेष्ठ है। हमें ऐसा ही बताऊं ना, समय सार की सामान्य दृष्टि क्या होगी और विशेष दृष्टि क्या होगी। समय सार में गाथा अलग अलग दिखाई दे रही, अलग अलग दिखाई दे रही है, समय सार की विशेष दृष्टि। समय सार की सही दृष्टि क्या है कि एक गायक भाव जो छोटी गाथा में बताया सब जगह निकलता हुआ दिखाई दे, सुगंध फैलाता हुआ दिखाई दे, तो समय सार को समय सार की दृष्टि से पढ़ा। और वो गायक भाव वो गाथा का नहीं है, वो गायक भाव जीवन का है। बराबर ऐसा जीवन का अपना समय सार। अब देखो अगली विशेषता कहते थे 5वें नंबर की, जेम जड़नो अग्नि जेनु निमित्त छे एवी उष्णता साथे संयुक्त पणारूप तप्त पणारूप अवस्था थी दिखाई दे ना बेटा, जो है ना अनुभव करता जड़नो उष्णता उष्णपणारूप संयुक्तपणु भूतार्थ छे, सत्यार्थ छे, तो पण एकांत शीतलता रूप जड़ स्वभावनी समीप जईने अनुभव करता उष्णता साथे संयुक्तपणु अभूतार्थ छे, असत्यार्थ छे। एवी ज रीते आत्मानुं कर्म जेनु निमित्त छे एवा मोह साथे संयुक्तपणारूप अवस्थाथी अनुभव करता संयुक्तपणु भूतार्थ छे, सत्यार्थ छे, तो पण जे पोते एकांत बोधरूप छे
એવા જીવ સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા સંયુક્તપણું આવે. જો કયા નંબર આમાં જો આ ચિત્ર છે નથી કદાચ, જો તમે લગાડી દો બેસે. हाँ जो अब इसमें वो चार बातें हैं. कौन सी चार बातें हैं? याद देखो पहले, जब मैं बोलूंगा तब मान लेना. अभी कुछ नहीं आएगा. देखो, संयुक्त असंयुक्त आत्मा है. आजकल हम भी असंयुक्त पने की बातें करते हैं और संयुक्त और असंयुक्त के नाम पर संयुक्त कुटुंब और असंयुक्त कुटुंब यानी ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की धारणा पर विचार करें. हमारी क्या है विचारणा में? संयुक्त यानी पर सजातीय का संयोग. આપણે કહીએ ને એકલા છો કે બેકલા છો, હે, અને એને જેની લગ્ન ના થયો એ શું કહેવાય? એકલા. અરે ભાઈ, જેનો લગ્ન ના થયો હોય તો પણ असंख्यात रागादी भावों साथे संयुक्त है. समझा? जिसको हम संयोग कहते हैं वो तो संयोग गिना ही नहीं. जिसे हम संयोग कहते हैं, स्त्री पुरुष का संयोग, परिवार का संयोग, समाज का संयोग, देश का संयोग, वो तो सिलेबस से ही नहीं है. ये 5 प्रकार के वेद ज्ञान बताए हैं. ये 5 प्रकार के वेद ज्ञान में 5 प्रकार के वेद ज्ञान में कहीं पर भी घर मकान दुकान से वेद ज्ञान नहीं कराया. स्त्री पुत्र परिवार आदि से वेद ज्ञान नहीं कराया. अभी अपन ने पूरा होगा ना, एक बार 5 में किस किस से कराया है वो बताऊंगा. कहीं पर भी संयुक्त के नाम पर प्रमाण से बाहर गए ही नहीं. क्योंकि भैया जिनको तुम संयोग कहते हो वो तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है कि नहीं? बताओ. अपन कहते हैं साहब कि भाई स्त्री का ये मेरी सहचरी है. सहचरी संस्कृत में धर्म पत्नी के लिए सुंदर शब्द आता है. क्या बोलते हैं? सहचरी है. अर्धांगिनी. अर्धांगिनी थोड़ा ज्यादा हाइपर नहीं जाते अपन. अर्धांगिनी तो ये सब कहाँ से आ गया पता नहीं. शिव शक्ति वाला कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे. ये शैव मत का शब्द है. कोई ऐसे अर्धांगिनी ऐसा नहीं होता. सहचरी एक सुंदर शब्द है जो लॉजिकल, बराबर, सांस चलने वाली. अब स्पष्ट सहचरी शब्द है क्योंकि जन्म से तुम्हारे सहचरी है. बाल विवाह भी हुआ होगा तो भी 15-1 साल तो हुई होंगी ना. उसके बाद सांस चलने आए और मरण भी एक साथ तो नहीं होगा ना. है, कोई वेला मोड़ा तो जाएगी. तो जिसे हमने सहचरी बोला वो कहाँ तक सांस रही है? बोलो. माता बोले 30 साल के बाद में माता पना प्रकट होती है. माता बनती है 20-25 साल में. पिता की कहाँ इसमें कोई दिखता है और प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि छोड़ के चले जाते हैं. तो ये तो बहुत दूर की बात है कि कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा पिता है, कोई मेरा पुत्र है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है, ये सब मेरे साथी हैं. अरे भाई, ये सब साथी कब तक हैं? साथ चल रहे तब तक. बाकी तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है. सब अपनी अपनी यात्रा अपने अपने रिजर्वेशन के हिसाब से जर्नी कर रहे हैं. ईष्टोपदेशकार बड़ी बहुत सुंदर बात कहते हैं. दिग्देशेभ्या खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्यवसा दिक्षु संगच्छन्ति प्रगे प्रगे. क्या बोला? इस दिशाओं से पक्षी आकर जैसे एक पेड़ पर रैन बसेरा करते हैं और सुबह होते ही सब चले जाते हैं, ऐसे ही अलग अलग दिशाओं से आने पर जीव एक पर्याय में इकट्ठा होता है. उसमें कोई उसका पिता, कोई पुत्र, कोई पत्नी, कोई पति,
कोई भाई, कोई मित्र और ना जाने क्या क्या, ये सब अलग अलग बनते हैं। और સ્વા કાર્ય વચાત ભિક્ષુ, જેમ સવેરા થાય બધા પાંખીઓ ઉડી જાય એવી જ રીતે મરણ થાય તો બધા પોતપોતાની યાત્રા ઉપર નીકળી જાય. સ્વા કાર્ય વચાત ભિક્ષુ, પોતાના કાર્યના માટે દિશાઓમાં જીવો જતા सब गच्छन्ति प्रगे प्रगे. એટલે यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जिसे तुम संयोग मानते हो वो तो प्रत्यक्ष संयोग है ही नहीं. समझ में आया क्या बोला? वो है कहाँ? अगर संयोग होता तो अमृतचंद्र आचार्य, कुनकुन आचार्य उसको यहाँ पर लिखते. आत्मा असंयुक्त है, संयुक्त नहीं है. जब कुनकुन आचार्य देव को ये बात लिखनी है, अमृतचंद्र आचार्य को ये बात लिखनी है, तो एकला न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली नहीं गिनाता, मैरिड के अनमैरिड के नहीं गिनाते, कुटुंब में है कि कुटुंब रही नहीं गिनाते. वो कहते एक व्यक्ति भी है ना तो असंख्यात प्रकार के संयोग को है. कौन से असंयोग है? कोई व्यक्ति यहाँ एकला नहीं है और हर व्यक्ति एकला है, ये यहाँ पे आएगी. कोई कहे कि हम, अरे भाई तुम कहाँ अकेले हो? असंख्यात प्रकार के रागादि भावों से संयुक्त हो. फिर मैं तो वो संयुक्त है, बोले कहाँ? ये तो बाहर से देखने पर संयोग हो, भीतर से देखने पर तो तुम एक ज्ञान स्वभाव के होने के कारण पर से असंयुक्त हो. समझ में आया है? समझे कि नहीं समझे? तो कोई अकेला है? बोले सब अकेले हैं. दोनों एंगल आएंगे यहाँ पे, दोनों एंगल आएंगे. पर्याय से देखा जाए तो हर एक जीव अपने अंदर के असंख्यात प्रकार के रागादि भावों से संयुक्त है. और द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो घर मकान दुकान तो है ही नहीं, शरीर भी नहीं. एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि देखी जाए तो रागादि भाव भी मेरे अंदर नहीं. दृष्टि की बात है भाई. वो क्योंकि देखो प्रैक्टिकली यही है, संयोग साथ नहीं होता, भाव होता है. ट्रेन में हजारों लोग साथ में जाते हैं और तब भी हम क्या कहते हैं? हम अकेले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं. अब बताओ, तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है, साथ चल रहे हैं लेकिन साथी नहीं है, क्योंकि जुड़ान नहीं. और वही 1000 में से कोई अपने गांव का मिल जाए तो बच्चा है वो होता है ना, फोन कर देता है माता बहन, अब चिंता वाली बात नहीं है, पहला काम ना क्या कमड़ी. अब क्या हो गया था? 1000 में पहले भी थे वो, लेकिन पहले ज्ञान नहीं था तो संयोग नहीं हुआ. अब ज्ञान हो गया कि अपने गांव के हैं, संबंध राग जुड़ गया तो अब चिंता नहीं. बोलो, यानी संयोग हम कहते किसे? जुड़ान का नाम संयोग है, ज्ञान का नाम संयोग नहीं. फिर से क्या बोला? जुड़ान का नाम, जुड़ाव का नाम संयोग है, ज्ञान का नाम संयोग नहीं. हजारों भीड़, आप ट्रेन में जाते, अरे बहुत भीड़ है, बहुत पैर रखने की जगह नहीं है. अच्छा अकेले? हाँ अकेले. ये दो बातें विरोधाभास नहीं लगती? क्यों बेटा? ट्रेन में पैर रखने की जगह ना हो और आप अकेले हो, है ये हो सकता कि नहीं होता? होता ही. हम जब भी जयपुर से आते थे या जयपुर जाते थे, मोस्टली टाइम हमारा पीक वाला ही होता है. समझ में आया कि नहीं? छुट्टियां कब से मिलेंगी पता होता नहीं था. तो कई बार तो ट्रेन का जो गेट होता था ना, गेट, उस गेट पर बैठ कर आते थे. खतरों के खिलाड़ी थे भाई. समझ में आया कि नहीं? समझे? अब दोनों बातें हो रही है. क्या? कि पैर रखने की जगह नहीं. और कैसे हो? इतनी भी जगह नहीं कि तुम्हें सीट मिल जाए, खड़े होने की जगह मिल जाए, और तो भी क्या मतलब? क्या इतने सब होने पर भी ज्ञान का विषय रहेंगे
तो असंयोग, और दो व्यक्ति हो लेकिन अगर जुड़ाव है तो बोले संयोग। ये बात, राग का ज्ञान मतलब राग का संयोग नहीं, राग का जुड़ाव मतलब राग का संयोग। ज्ञानी के अंदर में भी राग है लेकिन राग से जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है तो उसकी दृष्टि में असंयुक्त स्वभाव आ रहा है, बराबर। और अज्ञानी को तो राग से क्या, शरीर से जुड़ाव है, घर परिवार मकान धन दुकान जमीन जायदाद सबसे जुड़ाव है, और सबसे जुड़ाव है तो उसकी दृष्टि में संयोग ही आ रहा है, बराबर। चल जाएगी, दो बातें क्लियर। अब एक और बात यहाँ पे बताते हैं कि ये जब राग मेरा नहीं है तो आया कहाँ से। मुद्दा इतना है, हमने तो बुलाया नहीं तो कहाँ से आया। अब देखो वहां पे ये चित्र बताते, वहां पे जैसे पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल। कैसा स्वभाव है, नीचे के चित्र में दिख रहा है ना, एक पानी अग्नि के संयोग में रखा है और एक पानी कैसा दिख रहा है, अग्नि संयोग नहीं, वो एक होता है ना नॉर्मल माटले का आसन, वो दिख रहा है ना चित्र। पानी का स्वभाव तो दोनों जगह सेम है। इसका पानी, ये देखो अभी इसी को समझ लो, अभी ये सेम सिचुएशन है, केवल वहां पे लकड़ी लगा दी है और यहाँ पे लकड़ी नहीं लगी। अब इतना समझो, दोनों सगड़ी एक ऐसा मान लो, हालांकि सगड़ी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर अलग ही है ना, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि एक सगड़ी है, दोनों सगड़ी है, लेकिन एक में आग जल रही है और एक में आग। अब मुझे बताओ, ये पानी अलग है कि वो पानी अलग है, ऐसा है क्या। यही पानी जो ठंडा था उसी पानी को हमने क्या कर दिया वहां से गर्म, तो गर्माहट आई कहां से, पानी में से, संयोग से। पानी से गर्माहट नहीं आई, पानी तो कहता है शीतल ही है, शब्द बोल रहा हूं, शीतल ही है। इसकी खातिर क्या है कि जब इस पानी को जो गर्म हुआ है, उस गर्म पानी को ऐसे भी आप संयोग चला जाएगा। अभी सर्दी चालू होगी ना, तो पानी गर्म करने के लिए तो आप प्रयास करते हो, ठंडा करने के लिए क्या करोगे, है। अब हम हर जगह आर्टिफिशियल साधन लाएंगे, हम उसको फ्रिज में रख देंगे। अगर फ्रिज में नहीं भी रखोगे तो भी हमेशा स्वभाव है वो प्रकट हुए बिना रहता नहीं, और विभाव है वो जाए बिना। पानी में गर्माहट स्वभाव नहीं थी, इसकी खातिरी क्या कि जैसे ही वो अग्नि का संयोग हटता है उसकी गर्माहट भी चली जाती और फिर से हटाए होने वो नहीं जाए। बराबर ख्याल ना रखनी है, गर्माहट आत्मा का स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव नहीं है। इसकी सिद्धि इस दृष्टांत से होती है। इसकी सिद्धि कहां से होती है, इस दृष्टांत से, क्योंकि गर्म करने के लिए प्रयास करना पड़ता है और ठंडा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही आत्मा का रागादि करना स्वभाव नहीं, ये तो तुम पर के संयोग की भट्टी में से लेकर जाते हो। बात समझ नहीं है, आत्मा रागी नहीं है, तुम उसे रागी बनाते हो। अरे कि नहीं, अरे गजब बात है। आत्मा द्वेषी नहीं है, तुम उसे द्वेषी बनाते हो। क्रोधी भोगी नहीं है, तुम उसे भोगी क्रोधी बनाते हो। अरे तुम्हारी आत्मा, तुम्हें पता हो या ना पता हो, सिद्धों को पता है कि उन तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा का कोई भेद है, बढ़ना है कि नहीं, विचार है कि नहीं विचार। हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में रत्ती मात्र का फेर नहीं है। बोलो, एक की पूजा कर रहे और एक अपन हर जगह गालियां मतलब ऐसे सुन रहे, ना लायक कोई काम का नहीं, कहाँ लायक कोई काम, और एक की पूजा कर रहे हैं और तो भी कह रहे कि दोनों में फेर नहीं।
क्योंकि जो प्रमाद है वो स्वभाव में, वो अग्नि की उष्णता है, और हमें इसकी प्रतीति होती है, हमें इसकी प्रतीति होती है, हमें इसकी प्रतीति होती है। ये जयपुर में जब मैं था ना, तो क्या कहते हैं, प्रतिमा बनती है ना जयपुर में। अब जब आपने कभी बच्ची सिलवानी की मंदिर की प्रतिमा बन रही थी, तो तब मैं छोटा था, लेकिन बहुत सारा सोना जो लोगों का इकट्ठा हुआ था वो मुझे दिया था, और बोले कि जब प्रतिमा बने तो उसके अंदर डाल देना। गर्माहट खोलती हुई प्रतिमा पंच धातु की बनती है ना, तो सोना, वो बाकी धातु वो लोग यूज कर लेते हैं, और सोना वगैरह जब डालना होता है तो किसी को बोलते हैं कि तुम रहना और तुम डाल। अब मैं तब छोटा भी था, 16 साल का ही था, इतना सारा सोना तो डर सा भी लगे। अब एकदम खोलती हुई वो आई, बोले सोना डाल दो, तो इसमें डाल दे, आग लगी इसमें, तो बोले नहीं ये नहीं डाला जाता है। मैंने वो प्रतिमा में वो कुछ नहीं, वो तो डाल के है, विचार रहा हो कि नहीं विचार रहा, ऐसा लगे कि वो प्रतिमा बिगड़ ना जाए, ऐसा भी अपन ने डाला और वो पिघले नहीं, और प्रतिमा में वो बीटी बंगड़ी उछल के आ जाए, बोले नहीं होगा तो डाल दे उसके अंदर। बोलो, विचार करके देखो, जब वो प्रतिमा खोल रही है, लाल लाल है, लावा है, तो भी उस मूर्तिकार को वहां क्या दिख रही है, सुंदर, शांत, शीतल, कौन सी दिख रही है। और उसे पता है कि ये जो 1100-1200 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है, मेटल को पिघलाने का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है आपको, पानी तो 100 डिग्री में वो होने लगता है, बॉयल हो जाता है, लेकिन धातु सबका अलग अलग होता है, कुछ 1800 डिग्री में होती हैं, कुछ 2000 डिग्री सेल्सियस में, 2005 में, इतनी तक वो पिघलती। तो 2500 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर है, और उसमें सोने को डालते हैं, तो भी 2500 डिग्री सेल्सियस के होते हुए भी धातुकार को, मूर्तिकार को, अनुभवी को इस बात की प्रतीति है कि 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी विभाव है, और बाद में जब वो प्रतिमा बनेगी तो खोलती हुई प्रतिमा नहीं बनेगी, शीतलता देने वाली प्रतिमा बनेगी। आज भी किसी भी आप धातु को छुओ तो कैसी दिखाई देती है, एकदम शीतल दिखाई, गजब है कि नहीं, कितना भरोसा, 2500 डिग्री टेम्परेचर, और तो भी भरोसा किसका, शीतलता का। अरे भाई, जड़ का भरोसा रखते हो, चेतन का भरोसा रखो है। तुम्हें वो मूर्तिकार, मूर्ति पिघलाने वाले की दृष्टि लाओ ना, कि जिसे 2500 डिग्री में भी 2500 डिग्री नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, शीतल दिख रहा है। तो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी साथी सहपाठी वो भी कभी खोलते हुए दिखाई दे, तुम्हें क्या दिखना चाहिए है, क्या दिखना चाहिए, 2500 डिग्री नहीं भगवान। लेकिन तुम्हें, हमारे तो उल्टा होता है, तू 2500 तो हम 5000, और तू 5000 तो हम 50,000, आए है तो जाएगा कहां से है। ये कहते हैं कि तुम अपने आप को भी असंयुक्त नहीं जान रहे, और अन्य को भी असंयुक्त कैसे प्रतिमा बनेगी भैया। समझ में आया, ये निर्णय करो कि उस धातु की गर्माहट उस धातु का गुण नहीं है, वो अग्नि के संयोग से। हाँ, समझ में आया। ऐसे ही किसी जीव का विपरीत परिणमन, ओहो, वो उसके कर्म के उदय से है, वो उसका स्वभाव नहीं है। ऐसा जानकर जब जीव उसके स्वभाव पर दृष्टि रखता है तो विकार रहित होकर पूर्णता का अनुभव करता है। समझ में आया। इसने हाथ कितने अच्छे से डाल दिया, और यहाँ पे हाथ डालेगा तो क्या हो जाएगा, कैसी हालत होगी देखो, जैसा संयोग वैसी वैसी, तो ये सब बता रहे हैं।
ये चित्र बताए ना, चित्र, ये क्या अलग अलग प्रकार के इमोजी आज की भाषा में कहे थे। ये राग का हर बार तो चित्र आनंदित बता रहा है, गुस्से का आएगा तो अलग बता रहा है। 4 प्रकार की कषायों के चित्र हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो कषायमयी दशा है ये जीव का स्वभाव है, अकषाय दशा है। देखो ये यहाँ पे चित्र में, दूसरे चित्र में ये पानी, शीतल पानी ऐसे जीव का स्वभाव, उष्ण पानी यानी कालिमा वाला। और कालिमा वाला कैसे चित्र लिए, क्रोध वाला कैसा होता, मान वाला कैसा होता, माया वाला कैसा होता है, लोभ वाला कैसा होता है। तो ये जो 4 कषाय के मास्क हैं वो संयोग है, बराबर। 4 की 4 कषाय की 6 लेस्या, तो 4 गुणा 6 कितने हो गए, 24। 4 प्रकार की दशा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, लगा लो 24 गुणिया 4 96। और उसमें भी एक एक की असंख्या तो दशा, ये एक मास थोड़ी। ये विदेशी लोग तो एक दिन हेलोइन पार्टी मनाते हैं, धर्म तो ये कहता है कि तू तो हमेशा से हेलोइन पार्टी मना रहा है। हेलोइन पार्टी समझ गया ना, इसको पता होगा। हेलोइन बोलते, क्या बोलते हैं, हेलोवीन। उसमें क्या करते हैं वो अलग अलग प्रकार के रूप बनाते हैं, ड्रैकुला ना, विच ना, क्या क्या बनते हैं वो, नार की, कौन अच्छा सब तो बोला है ना। क्यों एक दिन में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का रूप बनाते हैं। धर्म कहता है प्रभु तू अनंत काल से स्वांग धर रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग मतलब यही तो है, और क्या। जो स्वरूप नहीं है वैसा बता वो संयोग। तेरा स्वरूप तो ये जो नीचे बता रहे, पानी का अग्नि से रहित देखा जाए तो स्वरूप कैसा है, निर्मल। आंख डाल के देखोगे सर्वांग शीतलता, लेकिन अनादिकाल से स्वांग रखे ना, स्वांग, इस स्वांग के कारण इतनी प्रकार की अवस्था है जीव को। तो यहाँ यही बता रहा भाई कि जो तुझे सुखी होना हो तो, मुद्दा इतना था, क्या बोला, जो सुखी होना हो तो स्वांग को स्वांग जान, और स्वभाव को स्वांग को स्वांग मत जान। क्या बोला, समझे, बड़ी अच्छी बात निकली। शब्द क्या है, स्वांग। स्वांग कैसा मतलब होता है, स्वांग। ये कषायों का स्वांग है, ये स्वभाव के अंग नहीं। ये तेरी हेरोइन पार्टी है, तेरा वास्तविक रूप।